आनंदित हूँ। Good evening. I trust that our studies together have been a help to you and that you have been able to take some notes and remember and meditate on the truths that God has given us in His Word to encourage us, to challenge us, to correct us, and to guide us on the pilgrimage from earth to glory. और इसलिए एक बार फिर से आप सभी को शुभ संध्या। जो मौका मिला है प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए, मेरा ऐसा उम्मीद है कि आप लोग जिस अध्ययन का आनंद ले रहे हैं और आनंद के साथ साथ आप लोग नोट्स भी बना रहे, उसको लिख भी रहे होंगे। और उसका लिखने का कारण यह है कि जिसके द्वारा जो वचन आप सीख रहे हैं उसको लिख करके आप उसके द्वारा जो गलतियां हैं उनको सुधार रहे होंगे, और उन जो बातों को आप लोगों के जीवन में, उन बातों को जो आप इस अध्ययन के दरमियान जानते हैं उनको अपने जीवन में लागू कर रहे होंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। And in the last few studies, we have been looking at 3 questions that help us understand what happened when man sinned way back in the Garden of Eden in Genesis chapter 3, what happened when Christ died on the cross outside Jerusalem, and the third study will be what happens when I believe the gospel of the Lord Jesus Christ. और इसी के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से हम लोग उन 3 सवालों पर पिछले दिनों में चर्चा कर रहे थे कि क्या हुआ जब आदम ने पाप किया है, जिसको हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय में पाते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और तीसरा क्या हुआ जो यीशु मसीह क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दे दी। And we have looked at in detail at the word redemption, because that is the need that we have, and God has provided a redemption through the work of the cross. इसलिए हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उस क्रूस के द्वारा जो प्रभु ने जो उद्धार का व छुटकारे का कार्य को प्रभु ने हम सब के लिए लिया है। When we consider redemption, we must understand that the Bible says very clearly, in whom, that is Christ, we have redemption through the blood of the Lord Jesus Christ. और इसलिए हम लोग इस बात में बहुत ही ध्यान रखना है और सावधानी बरतना है, क्योंकि बाइबल इसके विषय में बिल्कुल साफ रूप से हमें बताती है, समझाती है कि हमें किसके द्वारा छुटकारा मिला है। And so we understand that the Lord Jesus Christ on the cross paid the necessary price to God for the sins of the world, and that payment was his death, burial, his resurrection, and his ascension into glory. और इसलिए इस चीज को हम लोग पाते हैं कि जो प्रभु का वचन बाइबल इस रूप से बिल्कुल इस हमें साफ साफ बताती है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस करने के लिए उस क्रूस पर मारे जाने के द्वारा, गाड़े जाने के द्वारा और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा प्रभु ने उस कार्य को, जो जरूरत थी, छुटकारे की जो कीमत चुकानी थी, उस कार्य को, कीमत चुकाने का कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। And we took 4 studies to understand what it means that Jesus Christ would pay the price of redemption. We would understand that that redemption was adequate for all men, but not all accept or receive that redemption. And so we contemplate that the price was paid through the death and resurrection of the Lord Jesus Christ, and every person who believes in the Lord Jesus from that day until the present experiences the blessing of redemption and the adequacy of what the Lord Jesus Christ did in order that we might have salvation. और इसलिए हम उद्धार पाल हैं, उसके विषय में हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कीमत को जिससे कि हम लोगों को उद्धार का अनुभव करने पाए। सो हम इस बात को देखते हैं कि उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस पर चढ़ा है। Are you done? Yes, sir, I have translated that. I can't, but you're breaking up on me. I can't hear.
I'm sorry, And क्या so मेरी God आवाज has आ रही है? provided for us a wonderful blessing of salvation that's described in our flat outline. The work of God और in providing salvation is redemption. Man has been reconciled to God, and eventually we will look at the fact that God is satisfied with the work of Christ, and we, as men on earth and women and boys and girls, can believe the gospel, and these blessings become a reality for all of us. और जिस प्रकार से आप लोग जिस चित्र में देख रहे थे, जो आउटलाइन थी, माध्यम से इस बात को दर्शाया गया है कि मनुष्य का किस प्रकार से परमेश्वर के साथ मेल हुआ है। कार्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता से मेल हुआ है। इसलिए आज हमें वो आजादी मिली है, वो स्वतंत्रता मिली है कि हम आज उस प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के इस कार्य के द्वारा पिता के साथ सहभागिता रख सकते हैं, मेल मिलाप कर सकते हैं। And so last week we began a study of the word reconciliation, and it says to us in a number of texts that God was carrying out the reconciliation of man on the cross in order to make it possible for mankind to believe the gospel and to enjoy the salvation the Lord Jesus purchased while he was on the cross. और इसलिए जब हम जो मेल मिलाप की बात करते हैं, पिछले हफ्ते में हम लोगों ने जो मेल मिलाप के विषय में हम लोगों ने ध्यान किया था, उसकी जरूरतों के विषय में, और साथ ही साथ हम लोगों ने इस बात के विषय में भी अध्ययन किया था कि किस प्रकार से हमने उसके द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। And so we have another outline which helps us to understand what it means to be reconciled. The word itself means to be thoroughly changed. And we understand that when the Lord Jesus died on the cross, he thoroughly changed man, as we read last week in 2 Corinthians chapter 5 and verse 19. और इसलिए मेरे प्यारे जी, जब हम इस मेल मिलाप के विषय में, उस मिलाप के विषय में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस चीज को हम लोगों ने देखा था, इस चीज को हम लोगों ने सीखा था, समझा था कि इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना। तो परमेश्वर के साथ मेल हो जाना या मिलाव हो जाना या परमेश्वर के साथ मिलना का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो व्यक्ति इस पर विश्वास करता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 19वीं आयत को हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उसका जो मतलब क्या निकलता है। We will see, as we've already seen, that there is a historical aspect of reconciliation. God in Christ on the cross reconciled the whole of humanity to himself. That means he thoroughly changed him from a place where he could not be saved to a position now where he can believe on the Lord Jesus Christ and experience the salvation the Lord Jesus Christ purchased on the cross. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम उसी बात के विषय में जो हमने पहले देखा था और भी उसी बात में आगे बढ़ते हुए इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से पहले जो मनुष्य की अवस्था थी कि वो परमेश्वर के साथ मेल नहीं कर सकता, परमेश्वर के साथ उसका मिलन नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है, अर्थात यीशु मसीह के उस क्रूस पर चढ़ाए जाने से ही मनुष्य के जीवन में जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का जो कार्य पूरा किया है प्रभु ने, इस बात को हम लोग देखेंगे और जो कीमत थी प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुका दिया है। And so we come this evening to look at 2 Corinthians chapter 5 and verse 19, where God says through the pen of the Apostle Paul that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and has given unto us the word or the message of reconciliation. और इसलिए हम लोग इस बात को पाते हैं कि जिस प्रकार से दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 19वीं आयत में हम पाते हैं, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। And so the verse reminds us in no uncertain terms
that what was going on at the cross between man being there in the person of people around the cross, Satan is also a player because he is the one that is charging man with sin. And God is there and sin is there. But the man that is there is reconciled to God. That is a sovereign work of God to change man from a position where he could not be saved without the cross to a place where he can now be saved because of the work of the cross and the Lord Jesus saying, "It is finished." और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हो, इस बात को हम लोग देखते हैं कि इस भाग में जब हम पढ़ते हैं तो उस बात को लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर भी है, प्रभु यीशु मसीह भी है, के साथ साथ मनुष्य भी है और उसके पाप भी हैं। सो हम लोग इस वचन में इस बात को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेल मिलाप के द्वारा पूर्णतः पर बदल जाता है, क्योंकि जहां पर एक ऐसी अवस्था में मनुष्य थे पाप के कारण परमेश्वर से वो मेल नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी अभी वो इस अवस्था में इस तरह से उनका जीवन बदल गया है या बदल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बदल जाता है कि वो अभी परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा उनके साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। We have made again another flat outline which relates to the condition of reconciliation. And on the left, we have a picture of the lost person without Christ. That is, he has the burden of sin, he has the burden of unbelief. And mankind is born into this world with that condition as a permanent, personal situation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, इस प्रकार से एक और आउटलाइन जिसको आप लोग वहां पर देख पा रहे हैं, जो दाई तरफ जो व्यक्ति था वो पाप में व्यक्ति है, पाप में जीवन बिता रहा है और पाप में जीवन बिताने के कारण ही वो सर्वदा के लिए विनाश की ओर जा रहा है, क्योंकि उसके जीवन में पाप के संसार के और पाप के बोझ तले वो बंधा हुआ है, बंधनों में वो है। इसलिए वो उसका जीवन इस बात को प्रमाणित करता है कि सारा मनुष्य जाति, सारा संसार वो पाप के कारण पाप के अधीन हैं और इसलिए वो विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। And so that is the condition of man before the cross and after the cross, except with the fact that the Lord Jesus on the cross had a work that he accomplished, which was retroactive way back to the condition of people in the Old Testament and reaches forward to the present time when man is born in a condition being lost and away from God. Yet God has made adequate provision for man to have salvation and know the blessings of reconciliation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हो, आज वर्तमान में हम इस चीज को अनुभव करते हैं इस आज के आधुनिक जगत में। यद्यपि परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हम लोग इस बात को पाते हैं कि उस मेल मिलाप के कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने संभव कर दिया है और एक समय तक कि मनुष्य परमेश्वर के साथ पाप के कारण कभी मिल नहीं सकता, मिल नहीं खा सकता था, लेकिन आज वो अवस्था है, आज वो सिचुएशन में मनुष्य पहुंच गए हैं। लेकिन आज भी ऐसे भी व्यक्ति हैं जो नाश की ओर चले जा रहे हैं, जो आज भी उस मेल मिलाप से वंचित हैं, जो आज भी उस पाप के बंधन में उसके बोझ तले दबे हुए हैं और उनका जीवन विनाश की ओर जा रहा है। उसका कारण ये है कि प्रभु है तो है, रास्ता तो उन्होंने खोल दिया है, लेकिन उनके कठोर हृदय के कारण, उनके अविश्वास के कारण वो उस परमेश्वर के साथ, पिता के साथ उनका मेल मिलाप नहीं हो रहा है। And so in verse 19, the central statement in that is a statement that we have not expounded. And we want to look at the meaning of what it says when Paul says in verse 19, not imputing their trespasses unto them. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस वचन का जो प्रमुख आधार है, इस वचन में जो 19 का जो इस वचन में जो थीम या आधार दिया गया है, उसको हम लोग आज, पिछली बार हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, गहराई से उसकी व्याख्या नहीं की, लेकिन आज उस समझने का कर रहे हैं। सो वचन 19 में जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि
और उसने मेल मिलाप का वचन हम पे सौंप दिया है। उससे पहले जो आयत लिखी हुई, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। तो इस वचन पर हम लोग आज मनन करने वाले हैं कि और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। This is one of the most profound aspects of reconciliation, and it helps us understand what God was doing in preparing the work of salvation so that man could be transformed by the power of God and through the work of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के जरिए से मनुष्यों का मेल मिलाप परमेश्वर पिता के साथ करा रहे थे। उस चीज को हमें समझने के लिए, उसका कारण, उसका उद्देश्य जानने के लिए ये वचन हमें विवश करता है, स्मरण दिलाता है। In verses 18 and 19, the words reconciliation are used several times, and we need to understand what Paul is saying because this is one of the most profound descriptions of the work of the cross the Lord Jesus accomplished so many years ago. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जो 2000 वर्ष पहले जिस कार्य के विषय में, जिस बात के विषय में, इस मेल मिलाप के विषय में प्रेरित पौलुस को कई बार हम लोग चर्चा करते हुए पाते, कई बार 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 वो इस विषय के बारे में वो बोलते हैं। सो इस बात को हम लोग समझ पाते, इस बात को हम लोग जान पाते हैं कि वास्तव में जो मेल मिलाप का मतलब क्या है, प्रेरित पौलुस क्यों उस बात के विषय में बार बार कहता है, और उसका If we miss the meaning of these particular verses, we will miss the understanding of what the Lord Jesus Christ accomplished on the cross, and we will miss the opportunity of communicating a full and complete gospel of the Lord Jesus to people that we would like to see trust Christ as Savior. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, तो उद्धारकर्ता के रूप में जो लोग देखते हैं व ग्रहण करते हैं, सो यदि उस बात को वो ना समझें और जो मेल मिलाप के विषय को यदि ना समझते हैं, तो उनके जीवन में यद्यपि मसीह को स्वीकार करने के द्वारा भी, उस पर विश्वास करने के द्वारा भी एक व्यक्ति के जीवन में कदापि उसका अनुभव, उसकी खासियत उसे कभी भी मालूम नहीं चल पाती है। And so the text says in verse 18, all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and has given unto us a ministry, or the ministry of reconciliation. और जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस वचन 18 में, उसका दूसरा कुरिन्थी 5 का 18 में हम पढ़ते, तो वहां पर लिखा हुआ है कि और सब बातों परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। How many of us, as preachers and teachers of the Word of God and the gospel of Christ, acknowledge the responsibility that God has given to us to give the message of reconciliation to the world around us? और इसलिए हम में से कितने ऐसे इस बात के विषय में सचेत हैं व जागृत हैं, या उनको मालूम है कि जो प्रचारक हैं, जो जो शिक्षक हैं और जो सेवक हैं, उनमें से कितनों को इस बात के विषय में चिंता रहती है, या फिर वो इस बात के प्रति समर्पित रहते हैं, या जानते हैं कि ये बात कितनी आवश्यक है कि वो उन संसार के लोगों को जो मेल मिलाप का सेवा जो प्रभु ने सौंप दी है, उस मेल मिलाप के संदेश को उन तक पहुंचाएं। And God is saying in verse 19 that he is no longer imputing to mankind the trespasses unto those who have committed those trespasses. और इसलिए वो कौन है जिन पर, जिनके अपराधों का दोष नहीं लगाया गया है। That leads us to another question, and that question is, why is man lost? Why do we consider people in our world, in our neighborhood, maybe even in our family, who have not believed in Jesus Christ, why are they considered to be unsaved or lost or condemned to judgment? और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, यदि ये बात है तो एक सवाल यहाँ से उठता है कि आखिर हमारे आसपास में जो पड़ोसी रहने वाले हैं, और हमारे मित्र हो या रिश्तेदार हो या भाई हो या जो भी,
जिन्होंने विश्वास नहीं किया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो हम उन लोगों के विषय में ऐसा क्यों कहते हैं कि वो नाश होने वाले हैं, या फिर वो विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर वो बचाए नहीं गए हैं, या फिर उनका जीवन विनाश की ओर बढ़ते जा रहा है। सो हम लोग इस प्रकार से क्यों उनके विषय में सोचते हैं? In my teaching around the world and in seminaries and Bible schools, I have often asked that question: why is man considered to be lost? Why is he considered to be unsaved and to be a non believer? और इसलिए इस बात के विषय में मैंने अक्सर और कई बार इस बात को सवाल को पूछा है मेरे शिक्षा के दरमियान, जब मैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहां भी शिक्षा देने का मुझे अवसर मिलता है, चाहे बाइबल कॉलेज हो या फिर चाहे प्रचार के दरमियान हो, या फिर कोई सम्मेलन हो, या फिर कलीसिया की कोई सभा हो, इत्यादि जगहों पर मैं अक्सर जो युवाओं से एक सवाल पूछता हूं कि आखिर क्यों जो विश्वास नहीं करते उन 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 लोगों को इस प्रकार से गिना जाता है कि वो नाश होने वाले हैं। And so, in many of those classrooms around the world, after I asked that question, why is man lost? One of the students will raise their hand, and I will call on them, and they'll say, man is lost because he is a sinner. और उसमें से जब मैं इस सवाल से कुछ युवा खड़े होकर के कुछ विद्यार्थीगण जवाब देने के लिए करके उनसे बोलता हूं कि आखिर क्यों मनुष्य नाश होता है या फिर नाश होने के लिए गिना जाता है। सो उनमें से वो जवाब देते हैं, उसका जवाब इस प्रकार से होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, पाप किया है, और उन्होंने पाप से छुटकारा नहीं पाया है। And so, when I hear that answer that man is lost because he's a sinner, I ask the student that is willing to give me an answer, are you a sinner? And they will, of course, say, yes, all have sinned and come short of the glory of God. I said, are you lost? And he says, no. And I said, well, then a man is not lost because he is a sinner or has committed acts of sin. और इसलिए मेरे प्यारे, मैं उस व्यक्ति से इस बात की अपेक्षा करते हुए कि वो मुझे तुरंत जवाब देगा, मैं दूसरा सवाल, अगला सवाल उससे करता हूं, और अगला सवाल मेरा इससे ये होता है कि क्या तुम एक पापी हो? तो वो व्यक्ति इस प्रकार से जवाब देता है, हाँ, ये बात तो सच है कि मैं एक पापी हूं, क्योंकि सबने पाप किया है। तो उसके बाद में फिर मैं एक सवाल उससे पूछता हूं कि हर एक वो व्यक्ति जब पाप ही है, पाप करता है, तो वो विनाश की ओर जाता है, नाश हो जाता है, तो तुम क्यों जो है नाश होने वालों की गिनती में नहीं आते? And so I would affirm to these students that they must come to a condition and believe that acts of sin or trespasses, as the King James says, is not a reason why man is lost. And there must be another answer to that question. और इसके लिए फिर उसके बाद फिर मैं उस व्यक्ति को यहाँ पर लेकर के आता हूँ, जिस प्रकार से किंग जेम्स वर्जन इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य का क्यों वो नाश हो जाता है या नाश होने की ओर चला जाता है, उसका कारण उस प्रकार से वो बताता है। And so another student will raise a hand in the class and say, well, man is lost because he has a sin nature. And he goes on to explain that we have a sin nature, which is known as the old man, the I, or the self, or the flesh. And again, I will ask him, do you sin? Do you commit acts of sin from your sin nature? He would say, yes. I say to him, are you lost? And he would say, no, I am not. और उसके बाद में फिर जब मैं इस प्रकार से सवाल को उनसे करता हूं कि तो फिर जब सबने ही पाप कर दिया है, तो वो मनुष्य इसी कारण से विनाश, उसने पाप किया है, स्वभाव ही से वो व्यक्ति पापी है, और इसीलिए स्वभाव से वो पापी होने के कारण पाप करता है। और उसके बाद में बताते चला जाता है कि जो विद्यार्थी बताता चला जाता है कि क्योंकि उसने पाप किया है, स्वभाव के कारण वो पाप करता चला जाता है, इसलिए वो नाश होता है। तो उसके बाद में फिर मैं उससे अगला सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने उस स्वभाव के कारण पाप किया है? तो वो कहता है, हाँ, मैंने उससे पापी स्वभाव के कारण ही तो पाप किया है। तो उसके बाद में फिर अगला सवाल पूछते हैं कि क्या तुम नाश हुए, क्या तुम नाश हो गए? तो वो कहता है, नहीं, मैं नहीं ना
And so, as we study the Word of God, we realize that there are many occasions in which God, in His wisdom, does reveal to us the sinfulness of man. In Galatians chapter 5, the works of the flesh are listed to us, and there are 19 actions, all of which are considered by God to be sinful. We have the 10 Commandments given to us in Exodus chapter 19, all of which are sin and were sins under the law of Moses. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जिस प्रकार से गलतियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, जो है शरीर के दुष्प्रभाव, शरीर के पाप, शरीर के कर्म के विषय में लिखा गया है, जो इस बात से उनको पाप गिना गया है, हम लोग पाते हैं। उसके बाद में फिर जिस प्रकार से हम लोग मूसा की व्यवस्था के लिए निर्गमन की पुस्तक में उसका 19 अध्याय में जब हम आते, जहां पर 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी गई हैं, और उसमें जो बताए गए पाप के विषय में हम लोग पाते हैं कि मूसा के विषय के अनुसार, मूसा ने जो आज्ञा दिया, मूसा के द्वारा प्रभु ने जो आज्ञा दिया था, उनके अनुसार सब मनुष्य पाप करते हैं। And so, man who says he is lost because he is a sinner, we have to go back and say, what has he done in order to be lost? And the answer is murder and adultery and fornication and stealing and lying and disobedience to God. और इसलिए फिर उसके बाद में फिर मनुष्य ने क्या पाप किया है, उसके विषय में जब हम आगे पूछ चले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जो है वो व्यक्ति ने पाप किया है, उसने झूठ बोला है, उसने जो है पाप किया है, व्यभिचार किया है, दुष्कर्म किया है, अपराध किया है, अधर्मिकता के काम किए हैं, और उसने झूठे अपमान लगाए, तमाम प्रकार के पापों के एक सूची वहां पर हम लोग रख देते हैं। And so, verse 19, when it says to us that God does not impute the trespasses unto them, what is he doing? And how is it possible then for man to be saved if even after he believes on the Lord Jesus, he has a sin nature and he still commits acts of sin? और यद्यपि, क्योंकि वो व्यक्ति जो है जानता तो है कि सब पाप है, लेकिन पापी स्वभाव करते जाता है। Yes, sir. I've translated that. Okay. And so we need to ask the question, what is it that God uses to condemn man and causes him to hear the words, you are lost? And that answer is given to us in John chapter 14. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस प्रकार से जब एक सवाल पर वहां पर खड़ा होता है, क्योंकि अगर तुमने स्वभाव के कारण पाप किया है, तो फिर एक सवाल वहां पर खड़ा होता है कि क्या तुम नाश हुए। सो उसके विषय में हम लोग उसका जवाब जब हम पाते हैं, तो उसके विषय में हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14। And the answer is given to us actually in John chapter 16, not John chapter 14. And it speaks of the ministry of the Holy Spirit. And it says, when the Holy Spirit comes, he will reprove the world of sin, of righteousness, and of judgment. And so we ask the question, what sin is God convincing, God the Holy Spirit convincing or convicting men of? और प्रकार से हम लोग इस बात को पाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में नहीं, वरन 16 अध्याय में जब हम आते हैं, तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि इसलिए, क्योंकि जब मैं जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास आएगा, सॉरी, और वो सहायक तुम्हारे पास आएगा तो वो क्या करेगा, संसार को विषय में निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में वो तमाम प्रकार से वहां पर व्याख्या करी गई है। तो हम इस बात को पाते हैं कि वो जो पवित्र आत्मा आएगा, उसके विषय में जो वायदा करता है, वो पाप के विषय में उन्हें निरुत्तर करेगा, उन्हें स्मरण दिलाएगा। And so the Lord Jesus is telling the disciples and telling us in John chapter 16, verse 9, that the sin that the Holy Spirit has come to convict men of is the sin of unbelief. And so it says to us of sin because they believe not on me or not on Jesus Christ. और इसलिए पाप के विषय में इसीलिए वो मनुष्य को निरुत्तर करेगा, इसलिए वो उन्हें स्मरण दिलाएगा, इसलिए वो उन्हें एहसास कराएगा कि पाप के विषय में, पाप इसीलिए क्योंकि वचन 9 में, यूहन्ना उसका 16 का 9 में जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते।
And the Lord Jesus ends the question, or the Gospel of John ends with the amazing statement in John chapter 20, verses 20 and 21. And many other signs or miracles did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book, but these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through his name. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने यूहन्ना जो है अपने इस वाक्य को इस प्रकार से समाप्त करता है कि इसीलिए क्योंकि जो कार्य मैंने जो भाइयों को जो मैंने करके दिखाए हैं वो तुम भी करने पाओ, जिसके के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होने पाए। And so the important principle that is taught here and is taught in 2 Corinthians 5:19 is that God does not now charge men with the sins of disobedience, rebellion, and those sins, murder, adultery, fornication, stealing, and lying. He does not charge them with those sins. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को पाते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा कुरिन्थियों में दिया गया जो भाग है और जो यूहन्ना में दिया गया भाग है, हम इस बात को पाते हैं दोनों का यही इसी प्रकार से मेल होता है, इसी प्रकार से सिद्ध होता है कि जो कार्य प्रभु परमेश्वर के द्वारा किया गया उस विश्वास के जरिए से बचाव कर सकते हैं। And so God is saying that the sin of unbelief is the reason that man is lost. And if man continues to live in unbelief throughout his whole life and then dies in unbelief, then those sins which were not charged against him while he was living will be charged against him at the judgment of God for those who are not believers. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो देखिए पाप का दंड उन पर क्यों आता है, पवित्र आत्मा ने पाप के विषय में क्यों स्मरण दिलाता है, क्योंकि पाप के विषय में इसलिए स्मरण दिलाता है क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया है। सो जो भी व्यक्ति विश्वास ना करे, आज भी वर्तमान में अगर वैसे ही जीवन को बिताता है और अविश्वास में ही वो मर जाता है, तो उसने जो अविश्वास के कारण वो पाप उसके जीवित जीवित रहते हुए उस पर नहीं आते हैं, लेकिन मरने के बाद जब वो प्रभु यीशु के सामने उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा, तब उस अविश्वास का पाप उसके ऊपर आता है और वो उसी के कारण नाश हो जाता है। And there are those then that would say today that if it doesn't make any difference that our sins are not charged against us until we believe, then we might as well go and just sin. And Paul answers that question by saying, God forbid. And he reminds us in the book of Romans that the blessing of salvation comes to those who believe the gospel. And in believing the gospel, their past, all of their sins are forgiven, and they start a whole new relationship with God through the Lord Jesus Christ by the Holy Spirit. और इसलिए हम इस बात को पाते हैं मेरे प्यारे अजीज, क्योंकि वो जो व्यक्ति पाप के कारण जीवन बिताते रहते हैं और जो व्यक्ति पाप में ही जीवन बिता देते हैं, और कई लोग इस प्रकार से कहते हैं कि अरे जीवन में जीवित जीवित जब तक जीवित हैं तब तक हमारे ऊपर हो सकता है वो पाप का परिणाम हमारे ऊपर ना आए। लेकिन इस बात को स्मरण रखना कि पाप कर रहे हैं वो लोग, व्यक्ति ऐसा सोचने के द्वारा पाप करते रहते हैं, पाप करते चले जाते हैं अविश्वास के कारण। लेकिन याद रखना कि पौलुस में स्मरण दिलाता रोमियो के पत्र में कि किस प्रकार से वो पाप हमसे दूर रहे या फिर हम उस परमेश्वर के सन्मुख उसका भय मानते हुए पाप करने से डरे। And Paul addresses this very problem that you are concerned about in Romans chapter 5, verses 9, 10, and 11. There he reminds us that much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. For not only so,
but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have received the reconciliation. और इसलिए रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 9वीं और 10वीं और 11वीं आयत में इस प्रकार से प्रेरित पौलुस लिखते हैं, तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। And so that puts to bed the idea that is often poured and reminded to say, well, this man's a murderer. He is in prison. He's worse than the man who steals a pen from work, and others who lie and steal, and many things that are we consider not big sins, but murder and adultery and those kind of things. They are far worse, and God must do a special job for them. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को पाते हैं कि जब जिस प्रकार से कोई व्यक्ति मान के चलो एक छोटा सा एक चीज को यदि उसको चुरा लेता है, चाहे वो शीश हो या फिर पेन हो या पेंसिल हो या पिन हो या कोई भी चीज ऐसी हो जिसको वो लोग चुराता है, तो कभी कभी ये छोटी मोटी बातें हैं, हम इस प्रकार से सोचते हैं अरे ये तो पाप नहीं, ये तो गलती नहीं है। गलती हम लोग क्या सोचते हैं, अरे किसी की हत्या करना, व्यभिचार करना, या फिर जो है बर्बाद करना, तमाम बड़े बड़े कार्यों को हम लोग इस प्रकार से मनुष्य के सोच में रहता है कि वो ही सिर्फ पाप कहलाते हैं। And so, what I have just said, that problem that is permeates the church today, that some are more lost than the others, it's taken care of because God has not imputed or challenged or charged men with the sins that they have committed from the time that they were a baby to the time that they were faced with the gospel of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मैंने इस बात के विषय में आपको पहले ही जिस प्रकार से मैं बता रहा था उसके विषय में कि इसीलिए जो वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु परमेश्वर ने उनके अपराधों को उनके के ऊपर दोष नहीं लगाया है, इसीलिए क्योंकि वो पाप और अपराध जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में जो मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, उससे वो बच जाते हैं, और इसलिए प्रभु लगाते। And so, if God does not charge men today with the sins of murder and adultery and fornication, stealing and lying and all of these things, what sin is it that charges men in such a way that he must confess, I am a lost sinner? और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हो, देखिए यदि आज वर्तमान में प्रभु के वचन के अनुसार जैसे लिखा हुआ है कि वो उनके अपराधों को उन पर दोष नहीं लगाता, सो उसके अपराध है जो है हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, कुकर्म करना, और झूठ बोलना, और क्या बोलते हैं अपवित्रता के अधार्मिकता के कर्मों को करना, और जो काम उचित अनुचित कार्यों को करना इत्यादि पापों को जब वो उसके ऊपर उन पापों के कारण दोष नहीं लगाता। सो आज की वर्तमान की पीढ़ी में ऐसा एक मनुष्य को किस प्रकार से वो व्यक्ति इस बात को एहसास कर पाएगा कि अरे मुझे उन पापों से क्षमा की जरूरत है, मुझे जो है मैं जिन पापों को कर रहा हूँ, मुझे उन पापों से कौन बचा सकता है, कौन मुझे क्षमा दे सकता है। सो ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति को क्या करना होगा कि वो इस प्रकार का अंगीकार करे कि अरे मैं पापों के कारण नाश होने वाला हूँ, जिससे कि वो अंगीकार कर पाए। And so we must reaffirm the foundation stone of our condition in spite of what I have just said. And that is that every man, no matter what his sins are, great or small, he needs Christ because of his sins. But he is lost because of the sin of unbelief toward the worst person and work of the Lord Jesus Christ.
और इसलिए जिस प्रकार से मैंने ये कहा है, इसके विपरीत आपको इस चीज को समझना और मानना बहुत जरूरी है, जो अभी मैंने आपको बताया। देखिए, प्रभु का वचन इस प्रकार से बिल्कुल साफ कहता है, चाहे छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, या छोटा या जघन्य अपराध या पाप किया हो उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति को पाप का जो परिणाम है उसे मिलकर के ही रहता है। और क्योंकि वो पाप, वो है अविश्वास का पाप है, पिता पुत्र पुत्र पर विश्वास ना करने का, अविश्वास होने का पाप है। सो वो व्यक्ति उस पाप के कारण ही नाश की ओर जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, या फिर सरल या आसान, या तमाम किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। वचन जिसके विषय में कहता है वो अकट है, सत्य है, और वो अटल है। वो निर्णय निश्चय रूप से वो प्रभु के सन्मुख न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होता है। And so Romans chapter 5 and verse 10 says, if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. Here are two amazing aspects of this important work of God called reconciliation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि जो उस मेल मिलाप के कार्य जिसके विषय में कहा गया है, मेल मिलाप के कार्य जिसके द्वारा हम प्रभु के वचन में पढ़ रहे हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि इसीलिए हम उसके जो बलिदान के कारण, उसके मेल मिलाप के द्वारा जो पाप हम किए हैं उनके द्वारा बच जाते हैं और उन पर दोष नहीं लगाया जाता है। And so those of us who are preachers of the gospel can come to the pulpit, open our Bible to these verses in Romans chapter 5, and we can declare to thousands of men and women and boys and girls that the Lord Jesus, when he died on the cross, he reconciled all of them in such a way that he changed them from a way that they could not be saved and to a way where they can be saved and experience the forgiveness of all of their sins. और इसलिए हम जो प्रभु के समाचार के प्रचारक है, इस चीज को हमें स्मरण होना चाहिए और हमें सुनिश्चित कर लेना है कि उन भाइयों बहन के लिए हमें चुनौती है, उनके सामने चुनौती रखने की आवश्यकता है कि जहाँ से बच पापों के कारण उनके ऊपर जो दंड आता है, उन पर जो दोष आया है, उससे बचने के लिए जो है उनके बचाव के लिए हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि बचाव के लिए तरीका सिर्फ एक ही है, रास्ता सिर्फ एक ही है कि वो यीशु द्वारा उस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं, जो उसके साथ उस पर विश्वास करने के द्वारा मेल मिलाप कर लें, जिसके द्वारा वो जो पाप करते हैं उनसे उसका बचाव हो सकता है, जो नाश होने से बचाए जा सकते हैं। And so this ministry or this word of reconciliation described in verse 10 is significant and we need to comprehend. It says, if we, when we were enemies, or since we, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son. That means that at the cross, which happened so many years ago, I, as an individual coming into this world, being a sinner, I have been reconciled to God. There's no physical or emotional experience, but God in his wisdom, looking down upon the cross of the Lord Jesus Christ, he reconciled the whole world to himself and gave them the opportunity of believing the gospel and not continuing in unbelief and therefore continuing in a lost estate in anger against God and separation from God. और इसलिए जिस प्रकार से हम लोग रोमियो की पत्र उसका 5 का 10वीं आयत में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन लिखा हुआ है, प्रभु कहता है कि क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ।
फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। सो इस चीज को यहाँ पर एक सवाल के रूप में रखा गया है कि जब हम हमारे जो पाप हैं, जो अविश्वास के पाप हैं, जो शरीर में स्वभाव के द्वारा पाप करते हैं, जो भी हम सोच के द्वारा, विचार के द्वारा, नजरों के द्वारा, कर्म के द्वारा जो भी पाप करते हैं, जो हमें विनाश होने की ओर लेकर के चले जाते हैं, और इसलिए जब हम बैरी होने की दशा में अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर जो है यदि वैरी होने की दशा में उसकी पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उसकी पुत्र की मृत्यु अर्थात यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन के जो भी पाप हैं, जो भी अपराध हैं, अगर वो परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो जाता है, तो हम आखिर क्यों क्यों नहीं बचाए जा सकते हैं, क्यों नहीं हम बचाए जाएंगे। इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि अवश्य ही हम उससे बचाए जा सकते हैं और बच जाएंगे। And so we ask the question, what is the word of reconciliation or the ministry of reconciliation that God has given to us today to help us understand what it is that He wants our lives to be as we are ministers of the gospel of the Lord Jesus Christ? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को पाते हैं कि आखिर वो मेल मिलाप की सेवा प्रभु यीशु मसीह ने व परमेश्वर ने हमें सौंपी है, आखिर वो सेवा है क्या। इस चीज को जानना, मेल मिलाप की सेवा क्या है, उसको जानना एक सुसमाचार प्रचारक या सेवक की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। And so we can come to this conclusion this evening that we are not lost because we're sinners, because we're still sinners, and as believers in Jesus Christ, we are not lost. We are not lost because we have a sin nature, but because when we believe in the Lord Jesus Christ, the sin nature is paid for through the work of the cross. But the man who does not know Jesus Christ, the man who is not a believer, the man who has not accepted Jesus Christ as their Savior, he is lost because he has lived his entire life in unbelief. And though he might be a murderer or a thief or an adulterer, a liar, a stealer, those kind of things, he can say before God, I have been reconciled. The issue that faces me today is the issue of believing in the Lord Jesus Christ and in the work that He accomplished on the cross. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, आज मैं तो इस चीज को हमें समझ है कि जो उसने किया है तो उसे जरूरत है पाने की, उसको बचाओ की, उसकी आवश्यकता होती है। सो हम इस बात को पाते हैं कि जब वो व्यक्ति इस बात का अनुभव करता है कि किसी पर विश्वास करने द्वारा इसी पर क्या करता है, जो व्यक्ति वो उस भाव से ही बात करता था। And so how does all this play out in the life of a man born into this world and born in sin, shaped in iniquity, with a sin nature and acts of sin that began way back when shortly after he was born and disobeyed his mother or his father and grew up in such sinfulness and wickedness that he ended up in prison? That person, if he dies without trusting Jesus Christ as a Savior, God will then charge him with all of his sins and all of his disobedience, all of his transgression, all of the aspects of life which were against God, and He will charge them also with the sin of unbelief, and they will be judged permanently, not only for the sin of unbelief, but for all the sins that he accomplished. Had he had believed the gospel, they would have been forgiven. But not believing the gospel and rejecting the Lord Jesus Christ, that God will pour out His judgment against that man in a place of personal judgment for all eternity, called the lake of fire or hell. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हो, जो व्यक्ति वो परमेश्वर के पाप
करता है, पाप करने के कारण होता है कि अगर वो व्यक्ति जो है पाप करने के कारण बंदी गृह में डाल दिया जाता है, बंदी गृह में डालने के समय में भी अगर वो पश्चाताप नहीं करता है और उसको सुसमाचार नहीं सुनाया जाता है और वो व्यक्ति पाप में ही मर जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन पर, उस मनुष्य के ऊपर उस न्याय के दिन में परमेश्वर भयंकर रूप से उसके ऊपर दंड को उंडेल देगा। और वो दंड होगा, वो दंड आने के कारण यही है कि वो जो सुसमाचार उसने सुनाया था, वो जो सुसमाचार उसने यीशु मसीह के द्वारा उस मेल मिलाप की जो सेवा है, मेल मिलाप का कार्य है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव था, उस व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया, उस व्यक्ति ने अंगीकार नहीं किया, उस व्यक्ति ने पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, तो वो ऐसा व्यक्ति के ऊपर जब न्याय का दिन आएगा, प्रभु व्यक्तिगत रूप से उस मनुष्य के ऊपर अपने उस न्याय के दिन में भयंकर दंड को वो उस पर डाल देगा। और वो भयंकर दंड कुछ और नहीं वरन वो भयंकर दंड है कि अनंत काल की वो नरक की जलती हुई आग में वो व्यक्ति डाल दिया जाएगा और वहां से फिर वापस आना नामुमकिन है। And so now let us summarize these ideas so we can walk away with a clear understanding of exactly what it is that God did at the cross and what he's doing today and what he wants to do with anybody who is wanting to believe the gospel. Because the और meaning of इसलिए his work, man and God met at the cross, and the work of the Lord Jesus Christ included not only redemption to pay the price of our sin, but also to thoroughly change man from a position where he could not be saved to which, by the work of the cross and the death and resurrection of Christ, he can be saved. और इसलिए इस बात को आइए हम इस बात को जो है समराइज कर देते हैं कि अभी तक हम लोगों ने सीखा है। और इस बात को समझने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ करके कौन सी क्रिया को पूर्ण रूप से करके दिखाया है। And so God, in his infinite wisdom, has this glorious plan explained in Romans chapter साथ 5 and also in 2 Corinthians chapter 5 to remind us that it was the death of a cross. यीशु And मसीह और Romans, and though the Romans and the Jews did not know what was happening, this great work was being accomplished by God for man and because of the sin of unbelief. और इसलिए हम देखते हैं कि रोमी और यहूदी लोग The amazing principle that we have tried to describe this Yes, morning yes. is one of the most profound aspects of the blessing that God has bestowed upon us to provide a salvation for the whole world through the reconciliation, through the dramatic change toward man by God, so that man can believe the gospel, be born again, and know and enjoy the salvation at such a high price to God and Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों और हम देखते परमेश्वर हैं ने तीन सिद्धांतों को, हाँ कंटिन्यू। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं तीन सिद्धांतों के जिसके द्वारा जो हम उद्धार को हम देख सकते हैं पूरी दुनिया में, जगत में जो आया, और उसके कारण जो परमेश्वर के लोग हैं, मसीह के लोग हैं, ताकि विश्वास करने पाए। और हम देखते हैं कि उन तीन सिद्धांतों की वजह से मनुष्य और जो पापी लोग हैं उन्होंने जो परमेश्वर को जो ग्रहण किया और उसको वचनों पर विश्वास किया। So we can affirm the residual effects, the actual results are believer is saved from judgment, that he has left the old creation in Adam to become a new creation, and that positional change makes practical change in the life of every believer. As 2 Corinthians 5:17 says, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. All things are become new. हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों का 5:6 में कि जिसने मसीह को ग्रहण किया वो मसीह में नई सृष्टि है। और हम देखते हैं कि जो उद्धार के कारण जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करता है वो नई सृष्टि बन जाता है, और जो पुरानी बातें जो बीत जाती हैं उसी कारण हम देखते हैं जो उद्धार का विषय है, जो हम पुराना वास्तविक छोड़ के जो नया सृष्टि को हम अपनाते हैं। So in spite of all that God did
If man does not believe in the Lord Jesus Christ, accept his work on the cross as being an adequate substitute for our sins, he remains in sin, and he is still chargeable with the sins that he accomplished and the sin of unbelief with which he dies. और हम देखते हैं जो मनुष्य जो पाप था और जो आदम था वो पाप में जन्मा था, वो जो पाप में था उसने वो पाप किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पाप में ही रहा, और जो कोई मसीह पर विश्वास किया वो उसने जो पाप को छोड़ के जो उद्धार का मार्ग को अपना लिया। और हम देखते हैं And so there are three aspects of the residual effects or the consequences of reconciliation. In the past, we were enemies, and God reconciled us by the work of the cross to present us in such a way that we can believe the gospel and be born again. और हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मर गए थे, उसके कारण हम एक नया वास्तविक को देखते हैं, कि जो नया सृष्टि को देखते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मर के हमको जो उद्धार दिया है, उसके कारण हम नए जन्मे हुए लोग हैं और हमारा जीवन बदल चुका है। And because reconciliation means to thoroughly change, God, as a result of the resurrection of Jesus Christ, places his life in us, and we can say that we are reconciled by his death, and we are continually being reconciled by the life of the Lord Jesus Christ as he transforms us into the image of Jesus Christ through his life in me. और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पे बलिदान हुए, तब उनके द्वारा हमारे जीवन में जो बदलाव आया, और हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे प्रभु यीशु मसीह का छाया थी वैसी हमारी छाया होने की। अगर हम उद्धार पाए तो हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे सिद्धांत होगा, और इसी कारण कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान होके हमारे जीवन में जो बदलाव किए हैं। And in the present, the amazing work of reconciliation continues, because when we become one in Christ, both Jew and Gentile, the enmity that is against each other becomes a time of peace, and the peace of God is given to the Jew and the Gentile, and he creates one new man and therefore reconciles the church to himself in a very practical way. और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह न क्रूस पर बलिदान हुए, तो हम एक मनुष्य और हम जो विश्वासी लोग हैं वो एक जाति के रूप में हो गए। जो अलग अलग जगह से, अलग अलग जातियों से जो लोग आए थे, वो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके हम लोग एक समान हो गए, और उसी कारण हमारे जीवन में जो बदलाव भी आया। Well, I hope that you gained enough through the difficulty of the network to understand and comprehend this very, very profound and important lesson drawn from 2 Corinthians chapter 5, to know what God did at the cross and what he is doing day by day to make it possible for men and women and boys and girls to trust Jesus Christ as their Savior, experiencing the reconciliation of God, and then be given the message of reconciliation to proclaim to the rest of the world, that they too might enjoy the person and work of the Lord Jesus Christ. Amen. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, तो उस कारण हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो स्वरूप है, वो सब बदल गया, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, और हम जो प्रभु में उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर को हम ग्रहण कर चुके हैं। इस कारण हमारा जो परछाई है, हमारा स्वभाव, सब कुछ मसीह में बदल गया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग उसमें एक सीमित रूप से नहीं, हम लोग